Assalamu alaikum. I am Tariq Abbas from Lahore. I am an English language teacher and I have done my master's in English literature and then in English linguistics from Karachi University. I have almost 25 years hands-on experience of teaching English language, communication skills, business English, and soft skills. I have also been a teacher trainer. And I am very much thankful to Madam Rafia Mudassar for holding this Teacher Summer Learning Festival. And most importantly, it is going to add a lot to knowledge of you all. And I'm also very much thankful that I have been invited to speak to you all on a very important topic. And this topic is about classroom management. Now, classroom management is an area about which there's a lot of talk of the town, whether we do any language teaching course, ELT methodology course, or we go for any other professional course. Classroom management is an integral part of the curriculum. Why? Why it is so much important? Well, in my opinion, if there is no effective classroom management, the quality of instructions, the quality of the environment will be adversely affected. And in such a case where there is lack of trust, there is lack of respect, there is lack of connection, there is lack of bonding, there is lack of rapport between the teacher and the students, definitely the classroom learning outcomes cannot be achieved. So today we are going to talk about this very important topic, and we will see this topic through different angles. We'll see what the teacher should do, what the student should do, what is the role of the management, what are the tools for effective classroom management, and similarly we will talk about 5 P's of classroom management. We'll see what is the 5 mind theory given by Howard Gardner in his famous book Changing Minds, and we remember that he is the same author who has given us the theory of multiple intelligence. And then we'll see what is the role of a teacher, and then what are the basic teaching skill concepts, like what are the technical skills, what are the conceptual skills, what are the human skills, and what are the communication skills which a teacher should consider and should have these skills as his toolkit. He has to work on these areas if he wants or she wants to develop a good bonding with his or her students. Then we also talk about what is classroom disruption, what are its 3 types, and what is the stage of classroom disruption where our teacher must step out to handle it. So before we start, uh, let me tell you that this is a very important topic, and your feedback after you attend this session is very important. What do you learn out of it? What are your ideas? And what is your hands-on expertise in handling mixed ability classes or large classes or even in small classes where you think that things are going out of control? Okay. So what is classroom management? Let's talk about it. Classroom management basically means that you have a control over the class, and whatever the agenda, whatever the topic, whatever the lesson plan you bring inside the classroom, you are able to complete, you are able to fulfill that agenda, you are able to teach the way you have planned without any noise or distortion or interruption. So in this stage, when a teacher is going to the classroom, there are 4 stages which he should consider while considering the classroom management.
Number one point is that planning. A teacher should always go with the planning. What is the planning? Planning means that your lesson plan is prepared, your handouts are with you. If you are teaching on multimedia, then you need to have that your USB or your laptop or your notebook, and it should be operational. And if you go inside the classroom and there is sudden electric failure or there is some other fault with the equipment, how you are going to deal in that situation? You should be fully prepared about all these possibilities when you are in the classroom, because when you are inside the classroom and you are teaching and all of a sudden something goes down and you are unable to handle it, gradually you start losing control of the class. And then it is not you, but it is your class who takes control of it in most of the situations. So as a seasoned and as an experienced teacher, you should consider this thing. Your planning should be very proper. Your dressing, your practicing of the material, your strategy about the time management, how you're going to control all these activities, how much time you will give for brainstorming, how much time you will give for preparing the students, and how much time you will spend on the practice, and what kind of activities you're going to do during the practice stage, and then the production stage, and what kind of homework you're going to assign to the students, right? So these are things about the planning stage. And then the next stage is organizing. Organizing means that once you are inside the classroom, you have to see that everything you have planned goes according to that certain sequence of events. Your activities have been arranged in an orderly manner, and the time span is executed in a very professional manner, in which more and more focus is on learning of the student. So planning and then organizing. These are two very basic and very important steps in classroom management. And the third one is the leading. You have to lead as a leader. Teacher plays multiple roles: facilitator, guide, and a bridge between the knowledge and the students. And then he also acts as a leader. Leader means that whenever the students are having some difficulty in understanding the concept, understanding the activity, understanding the question, a teacher should be a sharp observer of the body language. And he or she should be able to notice that who are the students or which one is the student who is going to face or who is facing certain problem in understanding things. And then he steps out, goes to the student, and in a very polite tone asks what is the problem, and then facilitates, guides them, and sometimes attempts the problem in order to provide a solution to the students. So that basically builds bonding between the teacher and the student. And the fourth stage, which is very much important, is the controlling of the classroom. Whatever is going to happen in the classroom, as a teacher, it is you who has to control it. And if the noise level of the classroom or the chit chat among the students goes out of the control, it means that now the students are in the controlling position, which should not happen, especially for the new teachers. Those who are experienced and seasoned teachers, they understand these things very well by virtue of their a lot of experience inside the classroom. Especially for those who are new teachers, they should understand the importance of these four steps. And what are those four steps? Planning, organizing, and leading, and controlling. So these are very important points. You see, there are two things in the classroom. One is the focus on the learning of the students, and other is the focus on the behavior of the students. Now, which one is more important? Learning should go on or controlling of the behavior should go on? Yes, very well. It is the behavior that should be the main focus of the teacher, because if students are not behaving in a proper manner, the learning outcomes will not be achieved. There cannot be learning inside the classroom when there is a distortion, when the students are not giving attention to what the teacher is teaching. So, behavior versus learning, the focus should be on the behavior. When the behavior is under control, then learning will automatically take place. And this behavior should not be controlled.
through having a stick in your hand. There are many tools, there are many techniques for this, which we are going to discuss right now. So another thing is that as the Stephen R. Covey says in 7 Habits of Highly Effective People, that it is the प्राइवेट विक्ट्री दैट प्रीसीड्स द पब्लिक विक्ट्री। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको अपने ऊपर मुकम्मल अबूर होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अबूर होना चाहिए, आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो मेथडोलॉजीज हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उसके ऊपर आपका अबूर होना चाहिए, जो आप एक्टिविटीज लेके जा रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने आई कॉन्टैक्ट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और आपको अपनी लैंग्वेज और चॉइस ऑफ वर्ड्स और आपकी टोन, इसके ऊपर अबूर होना चाहिए। इनके ऊपर अगर आपको अबूर होगा और आपके अंदर पेशेंस होगी, तो कोई वजह नहीं कि क्लास का माहौल एक अच्छा पॉजिटिव और एक लर्निंग कल्चर वहाँ पे डेवलप ना हो। तो ये बेसिक टीचिंग स्किल्स हैं, उसमें हम 4 स्किल्स की बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल्स की, उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्चुअल स्किल्स की, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन स्किल्स की, और फिर हम चौथे नंबर पे बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो हैं जो आप बाकायदा किसी जगह पे एनरोल होके किसी टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्स को ज्वाइन करके आप उनको हासिल करते हैं, आप उनके एक स्ट्रक्चर्ड माहौल के अंदर सीखते हैं। उसमें जैसे पहले है डेवलपिंग अ लेसन प्लान। अब डेवलपिंग अ लेसन प्लान आप यूट्यूब या बाकी जगहों से देख के एक आइडिया तो ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी के ऊपर भी इसको बना सकते हैं लेसन प्लान। लेकिन अगर आपको खुद को उसका आइडिया नहीं होगा कि किस स्टेज का, किस स्टेप का क्या मकसद है और मैंने उससे क्या चीज़ अचीव करनी है, और मैंने टाइम मैनेजमेंट को कैसे उसके साथ चीज़ों को अलाइन करना है, तो ज़ाहिर है फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो लेसन प्लान के हवाले से भी ये है कि आपको लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे आपने नोट डाउन करने हैं, आपने उसमें जो टीचिंग एड्स हैं या ट्रेनिंग एड्स हैं, आपने उनको कैसे मेंशन करने हैं, और वो चीज़ें मेंशन करनी है जो आप क्लासरूम में यूज़ भी करें फिर उनको। इसी तरीके से आपने क्लास में जाके क्या करना है, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की बात की कि ऑर्डरली एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आप जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ पे करेंगी, आप क्वेश्चन आंसर उनसे पूछेंगी, आप पिक्चर डिस्कशन करवाएंगी, आप जनरल डिस्कशन करवाएंगी, और उसका ड्यूरेशन क्या होगा, और उसमें क्वेश्चन पूछेंगी या आप उसको एक्सप्लेन करेंगी सिनेरियो को, और उसके ऊपर तो इस हवाले से चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो डेवलपिंग अ लेसन प्लान एंड राइटिंग अ लेसन प्लान एंड देन मॉडिफाइंग ए लेसन प्लान, और इसमें जो हम रिफ्लेक्टिव लेसन प्लानिंग का जिक्र करते हैं कि आपने पढ़ा दिया एक लेसन, साथ साथ आपने जो आपकी शॉर्टकमिंग्स थी पढ़ाते हुए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसको आपने नोट डाउन किया, बाद में रिफ्लेक्ट किया, और अगले लेसन प्लान में आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर दिया। तो ज़ाहिर ये चीज़ें सीखने से आती हैं। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं लेसन प्लानिंग के हवाले से 4 पीस के हवाले से। 4 पीस क्या है? इसमें पहली पी है प्रिपरेशन, जो हमने प्लानिंग स्टेज की भी बात की। तो सबसे पहले प्रिपरेशन है, तैयारी है। आपका जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपने कंटेंट इकट्ठा करना है। वो आप किताब के ज़रिए भी हासिल करते हैं कंटेंट, वो आप चैट जीपीटी से भी हासिल करते हैं, वो आप गूगल करके भी करते हैं, वो आपको यूट्यूब से भी मिलता है, उसके अलावा बहुत सारे टीचिंग साइट्स हैं वहाँ से भी आपको मिलता है। आपको ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ की सहूलत अवेलेबल है, उसमें से जैसे एक है पीडीएफ ड्राइव गूगल के ऊपर। तो आप वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे आपको थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, आप अपनी रेलेवेंट बुक्स वहाँ से ले सकती हैं। और जो आपका पढ़ाते-पढ़ाते एक्सपीरियंस है, उसको भी आप थोड़ा-सा डवटेल आप उसके अंदर कर सकती हैं। तो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के बाद फिर सेकंड स्टेज है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में फिर आपको वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है डिलीट करनी पड़े जो आपने प्रिपरेशन स्टेज के अंदर एंटर की हुई है, क्योंकि आपको टाइम का भी खास ख्याल रखना है। आप कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट करती हैं, कितना इंटरेक्टिव आपका लेसन है, उसमें टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, और टीचर एज ए फैसिलिटेटर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और क्लास के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसको वो किस तरीके से हैंडल करता है। तो सर आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, और इस प्रेजेंटेशन में आपकी शख्सियत का बहुत ज़्यादा किरदार है, आपके रवैये का, आपके
बात करने के अंदाज का, आप जजमेंटल हैं, आप क्रिटिकल हैं, आपने बस स्टूडेंट्स को कहीं टारगेट तो नहीं किया हुआ, कहीं बार-बार उन्हीं को नहीं खड़ा करके आप सवाल पूछती या आप उन्हीं से तो नहीं ज़्यादा उनका होमवर्क चेक करती। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको लेके चलनी है, इससे आपको हेल्प होगी क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। तो प्रिपरेशन की हमने बात कर ली, प्रेजेंटेशन की बात कर ली, उसके बाद थर्ड मेन स्टेज आती है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट्स। यानी कि आप उनको एक्टिविटीज़ करिए, प्रैक्टिस करवाती हैं, आपने बोर्ड के ऊपर लिखा वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, आपने क्लास को पेयर वर्क के अंदर डिवाइड कर दिया, आपने उनको स्मॉल ग्रुप्स बना दिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर सब्जेक्ट। तो किस तरीके से आपने उनसे प्रैक्टिस करवानी है, और फिर प्रोडक्शन स्टेज आ जाती है जिसमें जो आपके एसएलओज़ हैं, जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है, वो सामने आते हैं। यानी जो आपने 40-45 मिनट्स में 50 मिनट्स का आपके जो भी क्लास थी, आपने उनको पढ़ाया, और उसके बाद ज़ाहिर है आपने जो प्री कंसीव्ड किए हुए थे अपने टारगेट्स के, इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकली grammatical structures, or they will be able to produce a composition, let's say of 100 words or 50 words or 80 words at the initial stage, and there will be no error of present indefinite tense or present continuous tense or present perfect tense। जो चीज़ भी आपने स्पेसिफाई की हुई है अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लेसन प्लान के शुरू में, दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दैट। उसमें वेरिएशन हो सकती हैं, वो ज़ाहिर है प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें फिर आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो हमने टेक्निकल स्किल्स में लेसन प्लान्स की बात की कि लेसन प्लान आपने कैसे डेवलप करना है, उसको कहाँ से आपने सीखना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, और उसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 पीस जो हैं, यानी कि प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, उसका कैसे ख्याल रखना है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में आता है कि जब आप क्लास में जाते हैं, तो आपको मेथड्स का आइडिया होना चाहिए कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में जा रही हैं पढ़ाने के लिए, और आपने उनको टेंसेस पढ़ाने हैं, या आपने उनको एक चैप्टर कायदे-ए-आज़म पढ़ाना है, तो उसके लिए आप वेदर यू आर गोइंग टू यूज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और यू आर गोइंग टू यूज़ डायरेक्ट मेथड, और यू आर गोइंग टू यूज़ सम मल्टीमीडिया, एंड देन यू हैव टू यूज़ ऑडियोलिंगुअल मेथड। आप उसके ऊपर डिस्कशन करवाने जा रही हैं, तो आपने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को प्रेफ़र कर दिया, और फिर आपने उसके अंदर जो है अपनी टेक्निक्स क्या अडॉप्ट करनी है। आपने पेयर वर्क करवाना है, ग्रुप वर्क करवाना है, आपने डिस्कशन करवानी है, ठीक है? इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी वहाँ पे क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन करने और इंटरेस्ट लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सबसे मेन जो आपके लिए चैलेंज है एज अ टीचर, वो ये है कि आपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे करना है। अगर आपने उनकी अटेंशन को एंगेज कर लिया, उनको इन्वॉल्व कर दिया लेसन के अंदर, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्लासरूम मैनेजमेंट का इश्यू हो, ठीक है? तो अब उस एंगेजमेंट के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, ये चीज़ आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के अंदर आ जाती है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में हमने पहला पॉइंट देखा, डेवलपिंग अ लेसन प्लान, और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़। और तीसरी चीज़ हम ये देखें कि आपको असेसमेंट टेक्निक्स का भी आइडिया होना चाहिए। You should be able to understand the nature of assessment, whether you're going for formative assessment or the summative assessment or the continuous assessment, ठीक है? जो आप क्लास में साथ-साथ करवाते हैं, आप क्विज़ेज़ करवाते हैं, उसमें आप उनको एमसीक्यूज़ देते हैं, आप उनको डिस्कशन करवा देते हैं, आप उनको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं। तो जो भी आपने करवानी है, आपको उसके बारे में मुकम्मल आइडिया होना चाहिए। आपको जो आइटम राइटिंग है, वो होनी चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, आपको पेपर सेटिंग का पता होना चाहिए, उसमें स्कूल की पॉलिसी क्या है, आपने कैसे उसको फॉलो करना है, कितने परसेंट सब्जेक्टिव होना चाहिए, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और आपकी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये एहसास हो कि द टीचर इज़ डीलिंग ऑन इन अ फेयर मैनर, ठीक है? और किसी की हक तलफी नहीं हो रही, और टीचर के कोई फेवरेट स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो फिर इस तरीके से जो आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, रूब्रिक्स जो हैं, उसके ऊपर भी आपको अबूर होना चाहिए। फिर आपको करिकुलम का आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद आपको ख़ास तौर पर जो एसएलओ हैं, यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम जो हैं, उसके ऊपर भी आपको अ, महारत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो आइटम पढ़ा रही हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये जो मेरी आज क्लास है, इसका एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या है, मुझे क्या चीज़ इसे अचीव करनी है। तो टेक्निकल स्किल्स के बाद हम बात करते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स की। कंसेप्चुअल स्किल्स के हवाले से ये होना है कि आपको लेसन के बारे में मुकम्मल आइडिया होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैं इंग्लिश लेसन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग आपको आने चाहिए। उसकी जो एंड ऑफ द लेसन एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसका आपको बखूबी इल्म होना चाहिए और आपको टेंसेज़ हैं, सेंटेंसेस हैं, ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं, एडजेक्टिव वगैरह हैं, उनका जो भी टाइप ऑफ द क्वेश्चन उसके एंड में दिए हुए हैं, उसका आपको बड़ा फेयर आइडिया होना चाहिए। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि क्लास के अंदर किस किस्म के सवाल होंगे लेसन से रिलेटेड और आपने किस तरीके से स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है। और वो सवाल आप खुद से भी पूछ सकते हैं, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड आंसर्स क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लासरूम व्हाइल यू आर टीचिंग इट, एंड व्हाट कैन बी द अनएक्सपेक्टेड। वो अनएक्सपेक्टेड फिर आपको ग्रेजुअली क्लासरूम में प्रैक्टिस से जाके आते हैं और फिर वो भी एक्सपेक्टेड आंसर्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो कंसेप्चुअल स्किल्स के बाद हम बात करते हैं ह्यूमन स्किल्स की। ह्यूमन स्किल्स का मतलब ये है कि जब आप क्लासरूम में जाती हैं तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि आपके आगे रोबोट्स ही बैठे हुए, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर मैन ऑफ फ्लैश। वो गोश्त पोश के इंसान हैं, उनके लिमिटेशन है, वो प्रेशर में भी आते हैं, वो स्ट्रेस के अंदर भी आते हैं, ठीक है। और आपने उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है। एज ए टीचर यू आर ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, आप एक माहिर नफ्सियात भी हैं क्योंकि टीचर बहुत से रोल प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में अगर 20, 25, 30, 35 बच्चे हैं तो इनका रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप इनको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए कैसे एग्जाम्पल देते हैं और वो एग्जाम्पल का ताल्लुक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है, ठीक है, तो किसी भी बच्चे की फीलिंग जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो किस सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके क्या स्ट्रेसेस हैं, कितनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आइडिया आपको होना बड़ा ज़रूरी है। और इसके बाद आपको एक और है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर स्टूडेंट्स की अपनी इंडिविजुअल नीड्स हैं, उसका एक अपना लर्निंग स्टाइल है, 2-4 स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल मैच कर सकता है उसके अंदर, और इनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपको हर स्टूडेंट्स को उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसके प्रॉब्लम्स के मुताबिक उसको डील करना है। वन साइज डजंट फिट ऑल। आप एक ही छड़ी से सबको नहीं हाँक सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी क्लास में डिसिप्लिन के भी प्रॉब्लम होंगे, मैनेजमेंट के भी प्रॉब्लम होंगे, और लैक ऑफ रिस्पेक्ट और लैक ऑफ बॉन्डिंग भी आपको वहाँ पे नजर आएगी। तो ये 4 बेसिक टीचिंग स्किल्स हैं जिसमें नंबर 1 हमने बात की टेक्निकल स्किल्स की, और इसके बाद हमने बात की कंसेप्चुअल स्किल्स की, फिर हमने बात की ह्यूमन स्किल्स की, और अब हम फाइनली बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल से क्या मुराद है? कम्युनिकेशन स्किल से मुराद सिर्फ बोलना नहीं है। बोलना, कम्युनिकेट करना, लिख के कम्युनिकेट करना, वर्बली इसको एक्सप्लेन कर देना, दिस इज वन पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन प्रोसेस, एंड दैट वन पार्ट काउंट्स ऑलमोस्ट 7% इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एंड व्हाट आर द रिमेनिंग 93%? उस पर तो हमने गौर ही नहीं किया। 38% इट इज़ अवर टोन, हमारा लहजा, जिस तरीके से हम बच्चे से बात करते हैं, ये बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करता है। अगर बात करते हो हमारे लहजे में तंज है, हमें मालूम नहीं होगा लेकिन बच्चा पिक कर लेगा। और अगर आप लगातार अरसे तक किसी बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं या आपके एक्सप्रेशन उसमें चेंज होते हैं, वो हम आगे बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज में, तो आपकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो यू हैव टू कंट्रोल योर टोन, यू हैव टू बी पोलाइट। हम इसके भी 5 पीस की अभी बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन में आप हमेशा याद रखें कि आप जब भी भले स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, या आप किसी कोलीग के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, या मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, या इवन घर में आप कम्युनिकेट कर रही हैं, तो यू आर कम्युनिकेटिंग एट 3 लेवल। कितने लेवल पे? 3 लेवल्स पे। पहला लेवल है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आपके वर्ड्स का इस्तेमाल आ जाता है जो कि 7% काउंट करते हैं। दूसरा लेवल आपका होता है वो है टोन, यानी पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। जो पैरा वर्बल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट 38% काउंट करता है। और उसके बाद आ जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो एक बड़ी एक अम्ब्रेला टर्म है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने जो ड्रेस पहना हुआ है वो भी काउंट करता है कि वो ड्रेस क्लासरूम के एनवायरनमेंट से मुताबिकत रखता है, आपने ज़्यादा शोइंग गॉडी ब्राइट कलर से नहीं पहने हुए वहाँ पे। इसी तरीके से आपका जो पोस्चर है, आप किस तरीके से खड़े हैं, आपके खड़े होने का स्टाइल भी बता देता है।
स्टूडेंट्स को कि वेदर यू आर एनर्जेटिक और यू आर टायर्ड और यू आर इंटरेस्टेड और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर आप जब क्लास में घूमती फिरती हैं और बच्चों से आप कितना डिस्टेंस मेंटेन रखती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज आके उनसे बात करती हैं अनकॉन्शियसली, तो बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। आप कोई भी बच्चा अगर टेस्ट कर रहा है और आप उसके पास जाके खड़े हो जाएं और आप 10 मिनट तक खड़े रहें, तो आप देखेंगे बच्चे के अंदर एक रेस्टलेसनेस आ जाएगी और उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो जो है आपकी जो टाइमिंग है क्लासरूम में आने की और जाने की और कितने अरसे के बाद आप उनको टेस्ट वगैरह मार करके उनका रिजल्ट शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपका इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ये आल्सो कम्युनिकेट, दे आल्सो कम्युनिकेट हाउ प्रोफेशनल अ टीचर यू आर। ठीक है, इसके अलावा जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स में बात करते हैं, हम हमेशा 7 C's की बात करते हैं, जो एक और इसका एक टेक्निकल पॉइंट है 7 C's। 7 C's का मतलब ये है कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, चीज़ें एम्बिगुअस ना हों, उसके अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए, आप गलत इन्फॉर्मेशन उनको ना दे रहे हैं। बोलते तो चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने लिख के कोई चीज़ आपने सेंटेंस लिखे हैं और आप इंग्लिश के टीचर हैं और उसमें ग्रामर की, स्पेलिंग की कोई गलती आ जाती है, दैट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड व्हिच द स्टूडेंट विल सी एंड देयर पेरेंट्स विल सी एंड मे बी योर मैनेजमेंट आल्सो सी इफ दिस थिंग इज रिपोर्टेड दैट द टीचर डज नॉट नो हाउ टू राइट sentences in English, right? तो ये चीज़ें आपकी करेक्टनेस वगैरह उसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसमें कर्टेसी आ जाती है, यू हैव टू बी वेरी मच पोलाइट। आपने उनके साथ मोहब्बत से, प्यार से बात करनी है, अपनी पेशेंस आपने शो करनी है। कंप्लीटनेस है कि आप जो भी लिख रही हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? कंसाइज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें ना लिखें, क्योंकि ज़्यादा लंबी चीज़ें होंगी तो फिर वो रिटेन करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए और आपका असल जो मुद्दा है वो उसके दरमियान कहीं गुम होकर रह जाता है। तो ये 7 सीज़ हैं, ठीक है? इनका भी आपको ख़्याल रखना चाहिए। इन चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू आर बिल्डिंग अ लर्निंग कल्चर इन योर क्लासरूम। और फिर हम बात करते हैं क्लासरूम डिस्ट्रप्शन के हवाले से कि वो डिस्ट्रप्शन क्या होती हैं। देखें, क्लास में जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्लासरूम कंट्रोल की बात करते हैं, क्लासरूम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की ज़ाहिर है हम बात कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो 3 किस्म का बिहेवियर आपको शो करता है। 3 किस्म की डिस्ट्रप्शन आपको मिलती है। एक होती है माइनर, माइनर डिस्ट्रप्शन, किसी ने कागज़ फेंक दिया, कोई हल्की सी आवाज़ निकाल दी, ठीक है? या कुछ और ऐसी हरकत कर दी जिससे थोड़ी-सी देर के लिए क्लास जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो उसके ऊपर टीचर को बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई रेज़ नहीं करनी चाहिए। और ये वो ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप गौर से उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, तो बच्चा समझ जाता है और वो ठीक हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है डिस्ट्रप्शन, वो होती है क्रॉनिक डिस्ट्रप्शन। क्रॉनिक डिस्ट्रप्शन में बच्चा थोड़ा शरारती होता है, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, आप उसको ज़्यादा से गाइड करें, आप उसको समझाएँ, आप फाइंड आउट करें कि रीज़न क्या है उसमें मिसबिहेव करने के पीछे, राइट? उसके सिलसिले में आप जो है उसके पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करें और उम्मीद है कि ये मसला वहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है, जिसमें ज़्यादा इश्यू होता है, वो होता है मेजर डिस्ट्रप्शन। मेजर डिस्ट्रप्शन में स्टूडेंट्स जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, वो नुकसान और तोड़-फोड़ पे आ जाता है। तो वहाँ पे फिर आपने उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है। और इसकी एक्सट्रीम ये होती है कि देखें, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बच्चों को निकाल देते हैं, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है। उस तक नहीं जाना है, उससे पहले-पहले आपने बाकी चीज़ें बाकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो जो आपने यूज़ करनी है, बच्चे की काउंसलिंग करनी है, उसको गाइड करना है, उसको अगर मसला आ रहा है तो उसके हवाले से आपने उसको हल करना है, आपने उसके पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करना है, पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करना है और फिर आपने साथ-साथ अपने स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रिंसिपल हैं, आपने उनको भी ज़ाहिर है पिक्चर में लेना है और उनको भी बताना है कि आपकी क्लास में जो प्रॉब्लम हो रहा है उस बच्चे की हिस्ट्री क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी रही है क्लास के अंदर। और वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे मेजर डिस्ट्रप्शन होती है, जहाँ पे आपके जो स्कूल की मैनेजमेंट है, दैट शुड प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव रोल एंड शुड हैंडल दैट बिहेवियर प्रॉब्लम इंस्टेंटली। उसमें फिर उनको मज़ीद देर करने की ज़रूरत नहीं है।
इस हवाले से हमने बात की। उसके अलावा फिर हम जो जनरल चीज़ें हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से वो हम देखते हैं कि आपने वो जो प्लानिंग है, प्रोएक्टिव प्लानिंग का वर्ड यूज़ होता है, प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो है पहले से चीज़ें प्लान करके रखनी है और लेसन में हर बार कोशिश करें थोड़ी चेंज लेके आएँ ताकि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल वो बरकरार रहे। फिर ये है कि आप क्लासरूम के हवाले से कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स बना दें फ्रॉम द डे वन, और डे वन से ही आप जो है वो बच्चों को बेशक एक एक कॉपी फोटोस्टेट करके उनको दे दें, बोर्ड के ऊपर लिख दें, उन्हें कहेंगे नोट डाउन कर लें और उसमें आप एक्सपेक्टेशंस लिखें कि व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू इन द क्लासरूम, कि वो क्लासरूम में रिस्पेक्ट रखें। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको वो 5 माइंड थ्योरी भी बता दूं जो कि हार्वर्ड गार्डनर की बात की थी। हार्वर्ड गार्डनर ये कह रहा है कि अभी बच्चों को अगर हमने मुस्तकबिल में तैयार करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उनके जो 5 माइंड्स हैं, 5 माइंड्स वो सिम्बॉलिकली ज़ाहिर बात करता है, हमने उनके माइंड्स को उन 5 डिफरेंट सिचुएशंस के लिए तैयार करना है। ये हम सेटिंग गाइडलाइंस उसके हवाले से बात कर रहे थे, तो इस समझ में कि हमने बच्चों को डिसिप्लिन करना है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ माइंड है वो है द डिसिप्लिन माइंड। इसकी मज़ीद डिटेल आप जो है वो हार्वर्ड गार्नर की जो किताब है चेंजिंग माइंड्स, उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे भी गूगल करेंगे तो बहुत मटेरियल और कंटेंट आपको मिलेगा। तो पहले नंबर पे डिसिप्लिन माइंड, बच्चे को डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको रूटीन फॉलो करनी चाहिए, उसको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है सिंथेसाइजिंग माइंड। सिंथेसाइजिंग माइंड का मतलब ये है कि आपने उस बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? द स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो, शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये राइट और रॉन्ग की सेंस क्रिएट करना है, ये एक टीचर का काम है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंथेसाइजिंग माइंड। और नंबर 3 पे आता है क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड जो है यानी कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए बॉक्स का होना ज़रूरी है। और ये बॉक्स कहाँ से आएगा? ये बॉक्स उस वक्त आएगा जब आप बच्चे के अंदर उसका डिसिप्लिन माइंड और सिंथेसाइजिंग माइंड इन दोनों को डेवलप कर चुके होंगे, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ ले जाएगा। नंबर 4 पे है रिस्पेक्टफुल माइंड। रिस्पेक्ट, कर्टेसी, पोलाइटनेस, दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बहुत एक्सपर्ट होंगे अपने प्रोफेशन में, लेकिन अगर आपके अंदर कर्टेसी नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, पेशेंस नहीं है, और अगर आप अपने हाइपर होने के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, then it means that you have a respectful mind and you will then keep on growing in the profession। और फाइनली वो बात करते हैं एथिकल माइंड की, कि बच्चे डिसऑनेस्ट नहीं होने चाहिए, शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें। ठीक है, तो 5 माइंड थ्योरी में क्या क्या है? द डिसिप्लिन माइंड, द सिंथेसाइजिंग माइंड, द क्रिएटिव माइंड, रिस्पेक्टफुल माइंड एंड द एथिकल माइंड। ये 5 टाइप्स के माइंड्स हैं। अच्छा, इसी के साथ ही फिर मैं आपसे जिक्र कर दूं कि 5 पीज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वो क्या होती हैं। अब हम जनरल चीज़ों की बात करें, वो है पॉजिटिविटी। नंबर 1, आपने हर हाल में क्लास में पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। आपने पोलाइटनेस को नंबर 2 पे बरकरार रखना है। बड़ा मुश्किल है अपने गुस्से को दबाना, अपनी सडन फीलिंग्स को दबाना। ठीक है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत से ज़्यादा, तो ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर इसमें। नंबर 3, प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको। इसके ऊपर हमने बहुत बात की। आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपको टाइम वेस्टिंग करना चाहिए, आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से चलें। ये ना हो कि एनुअल एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं और अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और आपको प्रॉम्प्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्स आपको प्रॉम्प्ट देना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हमने इसमें बिहेवियर की बात कर ली, एक्सपेक्टेशंस की हमने बात कर ली, क्लासों में किस किस्म का माहौल होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव अपनी रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ बिल्डअप करें और रेपो बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। और ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, यानी कि बच्चों के साथ आप पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाएं, रूट्स ना दें बच्चे के साथ जो शरारतें कर रहा है। ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो अपने मेंटेन रखें। कम्युनिकेशन होगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, तो दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रशअप करना शुरू कर देगी। इसी तरीके से कोशिश करें कि आप स्टूडेंट्स की जो एंगेजमेंट है और जो उसकी मोटिवेशन है इन योर क्लासेस, इन योर टॉपिक्स, वो आप उनको बढ़ाने की कोशिश करें। उसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स, आउट ऑफ द क्लासरूम असाइनमेंट उसके ऊपर कर सकती हैं। और क्लासरूम में ये भी कोशिश करें कि बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आप इनकरेज करें, उनकी डिस्कशन करवाएं, शॉर्ट स्पीचेस करवाएं, अगर पॉसिबल है आपके सब्जेक्ट के हवाले से ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज दें उनको,
और क्लासरूम में जो आजकल ज़्यादा मेथड यूज़ हो रहे हैं, जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, क्लासरूम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। पहले इनको सीखें, अटेंड करें इनकी क्लासेस वगैरह को, इनके स्टेप्स सीखें कि कौन-कौन से स्टेप्स इसके अंदर शामिल हैं और उसके बाद फिर आप इनको इसमें शामिल करें अपने क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर। और आपको चाहिए कि ग्रेजुअली स्टूडेंट्स की जो ऑटोनॉमी है, जो सेल्फ रेगुलेशन है, अपने खुद जो सेल्फ डिसिप्लिन होना है, ये बच्चों के अंदर इन चीज़ों को इनकलकेट करें। ग्रेजुअली ऐसे आप अपना प्लान करके इसको ब्रेक डाउन करके आप इसको करें। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, उन सब का हमने ओवरव्यू दिया है। हमने देखा है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, 5 माइंड थ्योरी को हमने डिस्कस किया, 5 पीस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया, हमने टीचर्स रोल को इसमें डिस्कस किया, हमने बेसिक टीचिंग स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स को डिस्कस किया, हमने कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को इसमें देखा, 7 सीज़ की हमने बात की, हमने डिस्ट्रप्शंस की जो 3 टाइप्स हैं, जिसमें माइनर और क्रॉनिक और मेजर डिस्ट्रप्शन है, उनको हमने डिस्कस किया। और आखिर में एक छोटी सी मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूँगा, और वो ये है कि आप जाके थोड़ा गूगल कीजिएगा क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। 4 मैनेजमेंट स्टाइल हैं, एक है अथॉरिटेरियन, एक है अथॉरिटेटिव, एक है परमिसिव और एक है इंडल्जेंट। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड इंडल्जेंट। इनके आपने देखना है कि हर एक की क्या-क्या ट्रेट्स हैं, क्या-क्या होता है हर एक जो क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है। और फिर देखें कि आप इसमें से किस स्टाइल को फॉलो कर रही हैं। हो सकती है कि आप अथॉरिटेरियन हों, या बहुत ज़्यादा परमिसिव हों, या इंडल्जेंट हों। तो आपको एक बैलेंस ट्राई करना है, जो कि आपको अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंदर मिलेगा। ये आप उसको पढ़ेंगी, देखेंगी, समझेंगी, अपनी प्रैक्टिसेस को मैच करेंगी, तो फिर आपको आइडिया होगा कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड, एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर क्लासेस, वेयर द रीज़न लाइज़। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। होप यू वुड हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू।